to all the leaders present in this training today, and I request you or you to invite your team members also to join this meeting. So बहुत बहुत धन्यवाद सर लीडर्स सब लोगों को कि आज ये मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए, और आपके जो भी डाउनलाइंस है आप डेफिनेटली इस मैसेज को फॉरवर्ड करके उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं तुरंत, ताकि दे विल आल्सो गेट टू नो द अपडेट जो हम आज बात करने वाले हैं. Okay, I see that most of our Royalty Club members, the silver and above Royalty Club members, ये जो FSSA का सर्टिफिकेट है उन्होंने ऑलरेडी ले चुका है, ऑनलाइन में अप्लाई कर चुके हैं, तो आ गया है. So they have shared the FSSA का जो एप्लीकेशन, जो लाइसेंस उनका जो है वो लाइसेंस को मेरे को शेयर भी किया था बहुत सारे रॉयल्टी मेंबर्स ने. So आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, so I would request you to take this message to your downlines also, so that everybody can have this license, because from 1st of October it's going to be a mandatory license for each and every distributor in Blue Life. Okay, so 1st of October से ये mandatory चीज हो जाएगा कि आपको ये जो FSSA का जो लाइसेंस है ये आपके पास रहना बहुत ही जरूर होगा. Okay, so let's begin the training today, and first of all I would like to give you exciting information that we have launched the new product Blue Wings today, and it's ready for billing. So आप सब लोग billing कर सकते हैं. So be the first one to take the new arrival. Okay, so आपका टीम में भी डाउनलाइन में भी इंफॉर्मेशन पास कीजिए. We have already shared the details with all the Royalty Club members and that all the top achievers कि ऐसे हमने लॉन्च किया है, और हमारा जो रीजनल मैनेजर्स है राजेश सर हैं और प्रदीप सर हैं और गार्गी मैडम है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन वेरी सून आपके लोकेशंस में दे देंगे. ओके, सो वी हैव दैट एक्साइटमेंट इन अस. ये एक्साइटमेंट में ही हम लोग ये ट्रेनिंग भी स्टार्ट करते हैं आज. व्हाट आर वी गोइंग टू सी टुडे? फूड लाइसेंस जो है FSSAI लाइसेंस, ये हमको कैसे पाना है, ये लाइसेंस को ऑनलाइन में कैसे पाना है, हाउ टू गेट दिस लाइसेंस ऑनलाइन. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द स्टेप्स. If you have a paper and pen handy, please make a note of these steps, ताकि आपको कुछ कहीं पे भी डाउट आने से you can refer to that and you can proceed. Okay, so ये ट्रेनिंग जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है मैं हिंदी इंग्लिश में शेयर करूंगा, and if possible if required मैं तेलुगु में भी थोड़ा बोलने का कोशिश करूंगा if there is any requirement of Telugu, but the information is going to be more in Hindi and English. Okay, so this is the screen how it look like. First आपको login करना होगा foscos.fssai.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको login करना होगा. So यहाँ से इस वेबसाइट में login करने के बाद आगे कैसे बढ़ना है, I would love to show you on the live screen. मैं live screen में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आगे बढ़ना है इसके इस वेबसाइट में login करने के बाद. So let me take you through the live screen now. Okay. So leaders, पहले हमको foscos.fssai.gov.in में login करना पड़ेगा, and this is our website. I mean, this is a FSSAI website. Once you log in here, you can see click here for Foscos. जो ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, click here for Foscos. This is where you have to click. यहाँ पे click करेंगे तो automatically you will see a screen here. Okay, so this is a screen you will come to, and ये screen में आपको scroll down करना पड़ेगा नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं apply for registration certificate petty food business operator. Okay, this is the option which you have to click. So when you log into www.foscos.fssai.gov.in, okay, so आपको click करना पड़ेगा, click here for Foscos. So वहाँ पे click करने के बाद you will come to the second sheet. This is number 2. So ये sheet में second slide में आपको नीचे आने के बाद you can see apply for registration certificate petty food business operator. So यहाँ पे आपको click करना पड़ेगा. This is where you have to click, and you'll come to the page number 3. So यहाँ पे page number 3 में आपको email ID या mobile number आपको update करना पड़ेगा, and you have to capture the number. So let me update my mobile number here. Okay, और मैं यहाँ पे ये जो number है वो मैं capture कर रहा हूँ, and मैं submit में click करते हैं. तो यहाँ पे it will ask for the OTP.
Let me see if I have received the OTP. Yes, OTP आया है, तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ 0673. Okay, so मैं जब OTP डालता हूँ, it is verifying me and taking me to the next page. Okay, so once you come here, यहाँ पे आप जब OTP एंटर करते हो, आपको मोबाइल नंबर जब एंटर करते हो, आपको जो OTP रिसीव होता है वो OTP वहां पे अपडेट करके यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट स्क्रीन. सो यहाँ पे ये स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रजिस्टर करके एक ऑप्शन दिखेगा. सो ये रजिस्टर में आप अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हो. ओके, यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा. तो यू हैव टू सेलेक्ट. तो मैं यहाँ पे कर्नाटका में रहता हूँ, सो आई हैव सेलेक्टेड कर्नाटका. एंड लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन करने से आपको यहाँ पे फ्यू ऑप्शन यहाँ पे आप दिखेंगे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेड, रिटेल, फूड सर्विस वगैरह. सो यू हैव टू सेलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन, ट्रेड और रिटेल. ओके, तो जब आप ट्रेड और रिटेल पे सिलेक्ट करोगे आपको फ्यू ऑप्शंस नीचे ड्रॉप डाउन में दिखेंगे. सो ये ड्रॉप डाउन में आप यहाँ पे देख सकते हैं समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, सो वी हैव टू सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और यहाँ पे टर्नओवर ऑफ 12 lakhs पर एनम पे आप क्लिक कर सकते हो. ओके, सो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. So when you update your email ID or your mobile number and you verify the OTP, you will come to this page. Okay, so when you come to this page, you have something called apply for new register on the left hand side. So when you click on apply for new registration, you get an option to select your state. So wherever you are living, you can select the state of that particular place. And when I select the state, you have to come down and you can see an option called manufacturer, trade or retail, food services, okay, central government agencies. So ये options आप यहाँ पे देखने को मिलता है. So you have to select the second option, which is trade and retail, and then you have to click on distributor. Okay, और turnover up to 12 lakhs per annum आप यहाँ पे select कर सकते हैं. So now the question what arises, last time I think we have one distributor who is asking, sir अगर 12 lakhs से भी ज्यादा होने से क्या होगा? So nothing to worry about it. We have to just take the turnover up to 12 lakhs per annum only. This will do for now. Okay, there is nothing to worry about it. Even if you're doing 1 crore of business, also nothing to worry about it unless you have a license copy from FSSAI. Okay, so each and every product, okay, which is FSSAI certified, the license number is already mentioned in our products also. Okay, so at the same time, even if you have one license, that will be sufficient. Alright, so ये लाइसेंस लेना बहुत ही जरूरी है. फ्रॉम 1 अक्टूबर सब लोगों के पास ये लाइसेंस रहना चाहिए. इसीलिए इसके बारे में मैं 2 ट्रेनिंग कर रहा हूँ एंड दिस इज माय सेकंड ट्रेनिंग. राइट, सो टर्न अराउंड अप टू 12 lakhs per annum आप सेलेक्ट कर सकते हैं. देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड. ओके, सो प्रोसीड में जब आप क्लिक करोगे सो यू विल सी द व्यू एलिजिबिलिटी. सो यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेसेस. ओके, सो आप वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर 12 लाख टर्नओवर पे आप सेलेक्ट करने के बाद इमीडिएटली यू विल come to the next page when you click on process, and then you have to click here to apply for registration for all businesses. तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो डिटेल्स है ये डिटेल्स आपको फिल भी करना पड़ेगा. सो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग इज नेम ऑफ एप्लीकेंट. नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी ये मेरा नाम. अगर मेरे नाम पे आईडी क्रिएट हुआ है तो मेरा नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा. और कंपनी करके यहाँ पे दिया है तो जरूर आप ब्लू लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी का नाम मत डालिए. यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम ही डालना पड़ेगा, यानी आपका खुद का नाम. अगर आपका कोई फर्म है, आपके फर्म के नाम से आपने रजिस्टर किया है आईडी, तो वो फर्म का नाम यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो. और यहाँ पे जो नीचे जो डेजिग्नेशन पे दिया है यहाँ पे आप अगर आपका जो फर्म है वो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो. नहीं तो आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना होगा. ओके, सो आपको जब ये इंडिविजुअल पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप देखने से आपको जरूर कहीं ना कहीं हमारा ब्लू लाइफ वेबसाइट का याद आता होगा, क्योंकि हमारा वेबसाइट में जब रजिस्ट्रेशन में पेज में जाते हैं तो वहां पे भी ऐसे ही कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे डेजिग्नेशन में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा.
इंडिविजुअल में सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आने से आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू लाइफ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारा कोरमंगल ऑफिस का एड्रेस डाला हूँ और इट इज बैंगलोर अर्बन, और यहाँ का विलेज बैंगलोर अर्बन आ गया है, और सब डिविजन दिस इज बैंगलोर साउथ में आता है ये। और यहाँ पे लेट मी चेक आगरा, ओके और यहाँ पे मैंने पिन कोड, यहाँ पे जो रेड हैश मार्क्स दिखे हैं दीज आर द मैंडेटरी फील्ड्स व्हिच यू शुड बी अपडेटिंग, यानी यहाँ पे जो भी रेड पे हाईलाइटेड यहाँ पे स्टार्स आप दिख रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको जरूर एंटर करना ही पड़ेगा। ओके सो यू कैन नॉट स्किप दिस। ओके फॉर एग्जांपल नियरेस्ट लैंडमार्क में रेड डैश नहीं है तो मैं यहाँ पे अपडेट कुछ भी नहीं करने से भी चलेगा। आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। So it is asking, is your correspondence address same as address premises? So I will click on yes, ताकि मैं जो एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ यही एड्रेस पे मैं करस्पॉन्डेंट एड्रेस, यानी मेरे को कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो यही एड्रेस में आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यस क्लिक किया है ताकि सेम एड्रेस यहाँ पे पिक हो जाएगा। ओके सो नेक्स्ट इज द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में 914 ओके सो नंबर ऑफ इयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी आपको कितने साल के लिए ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पूछा गया है। सो वी वुड रिकमेंड यू टू टेक ओनली फॉर 1 ईयर एट द मोमेंट। 1 साल के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो 1 साल 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ओके डिटेल्स ऑफ फूड आइटम्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। ओके तो यहाँ पे आपको हमने कैटेगरीज यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 13 फूड स्टफ्स इंटेंडेड फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल यूजेस, तो ये सीरियल नंबर 13 को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेव एंड ऐड करना पड़ेगा। ओके सो वंस यू सिलेक्ट योर number of years of you want to apply for the license, you can select number 1 year is sufficient for now. Okay and the next thing is details about the food items are proposed to manufacture or sold. You have to select serial number 13 food stuffs intended for particular nutritional uses. So once you select that, please come down और यहाँ पे business start date if you want you can update, otherwise ये mandatory field नहीं है, so there is no need of updating. Source of water supply, you can click on public or private, whatever water you are using at the moment in your premises, you can update accordingly. ओके यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट में पानी का यहाँ पे आप कौन सा पानी सोर्स ऑफ वाटर आप सप्लाई यूज करते हैं तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। राइट इट्स वेरी क्लियर, वेरी वेरी सिंपल। अगर एक एक स्टेप में हम लोग धीरे से फॉलो करेंगे तो 100% you know we can get this license immediately. राइट सो नेक्स्ट पेज अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपका डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। So it clearly says is all documents shall be self-attested by the authorized signatory or proprietor or individual or a applicant। यानी आपका जो फोटो या आईडी प्रूफ, यहाँ पे क्या पूछे हैं, एक है फोटो और एक है आइडेंटिटी प्रूफ। ओके आइडेंटिटी प्रूफ में यू कैन सी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सो ऑल दिस पासबुक एनीथिंग, यहाँ पे जो भी दिए हैं ये ऑप्शन में एनी वन यू कैन चूज। और आपका जो फोटो है फोटो के ऊपर आपको साइन करना पड़ेगा, यानी सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, और आईडी प्रूफ के ऊपर भी साइन करना पड़ेगा। देन यू हैव टू टेक अ फोटो ऑफ इट, उसका फोटो लेके वो फोटो को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ओके सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सेल्फ अटेस्टेड होने से ही लाइसेंस आपको इमीडिएटली मिलता है। ओके अदरवाइज ये फिर से आपको रिकरेक्शन करना पड़ेगा, फिर से आपको एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके फिर से डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा। इससे पहले लेट अस कीप एवरीथिंग रेडी, व्हाटएवर वी वांट, सिंस मैं अभी बता रहा हूं आपको, एवरीथिंग आप रेडी से रख के उसके बाद ही अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक फोटो लीजिए, फोटो के ऊपर साइन कीजिए, देन उसको फोटो खींचिए एंड आइडेंटिटी प्रूफ का भी एक साइन करके उसका फोटो लेके देन उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो चूज फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो और आपका जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो अपलोड करने के बाद ओके सो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, सो यहाँ पे
कोई जरूरत नहीं है कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करने का, ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स आर सफिशिएंट। और यहाँ पे आपको टिक मार्क में क्लिक करना पड़ेगा दैट आई और वी डिक्लेयर दैट नो, ताकि हम इस पूरा एफएसएसआई का डिटेल्स को हम अंडरस्टैंड किए हैं। सो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे आप इसको टिक मार्क सेलेक्ट करना पड़ेगा और नेक्स्ट यू हैव टू गो अहेड एंड मेक द पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरीके के पेमेंट मोड्स दिए हैं। सो ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे और पे यू बेस में आप पे कर सकते हैं। सो आई वुड लव टू सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे। ओके, रेजर पे आप क्लिक कर सकते हो और आपको यहाँ पे 100 रुपीज का पेमेंट जो है आपको पे करना होगा और आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है 302। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा आपका एप्लीकेशन नंबर और आपको कितना अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिया है पे, सो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। क्योंकि मेरा यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने अपडेट नहीं किया है, तो अगर अपडेट करता तो मेरे को यहाँ पे पे में जब क्लिक करूंगा तो मेरे को नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाता था। सो नेक्स्ट पेज में जब डाइवर्ट होता है वहां पे द पेमेंट प्रोसेस इज वेरी 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 इजी। जो आपका जो रेजर पे का जो नॉर्मल ऑनलाइन का जो ऑर्डर आप प्लेस करते हो वैसे ही पेमेंट डिटेल्स होता है। आपको एक 100 रुपीज वहां पे करना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो सर्टिफिकेट आपका जो लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। Isn't it very very easy? Okay, so please I would request all of you to share these details with your downlines and tell them to take this license on or before 1st of October. Okay, so October में let's have a major number of distributors, हमारे जो distributors हैं ये FSSAI लाइसेंस रहने का। ये FSSAI लाइसेंस लेने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, जब आप पेमेंट करोगे आपको एक मैसेज आएगा कि आपका FSSAI को आपने अप्लाई किया है एंड दिस इज योर पेमेंट कंफर्मेशन। एंड प्लीज वो मैसेज जो है हमारे कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए है या support@bluelife.in में आप भेज सकते हैं या यूजिंग योर आईडी नंबर डाल के आप भेज सकते हैं ताकि वो हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। हमारे पास भी डिटेल्स रहेगा कौन लाइसेंस लिया है नहीं लिया है। सो वी विल आल्सो मेंटेन अ ट्रैकर। ओके, सो होप दिस वाज वेरी सिंपल। आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरे को ये कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी सिंपल है। जस्ट वेबसाइट में आपको लॉगिन करना होगा फास्ट कॉज में। मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। देखिए फास्ट कॉज में क्लिक किया मैंने और यहाँ पे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद पेटी फूड में क्लिक किया और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला। ओके, एंड 190972 सी वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे मैं फिर से ये प्रोसेस जो है आपके लिए मैं फिर से एक और बार कर रहा हूँ ताकि one minute 110673 OTP invalid, still not come, देखते हैं। सो OTP अभी नहीं आ रहा है, मे बी आई हैव ट्राइड टू मेनी टाइम्स बट जरूर OTP आएगा। सो anyways I have shown the entire process how to follow, please follow the same. Okay, there is one more question from our leader. अगर ऑलरेडी मैंने FSSAI का लाइसेंस ले लिया है, ओके, तो अगर आपने FSSAI का लाइसेंस ऑलरेडी इससे पहले ही लिया है तो आपको फिर से लेने का कोई जरूरत नहीं है। अगर वो 1 ईयर टर्म हो जाता है और वो एक्सपायरी हो गया है तो आप उसको रिन्यूअल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने ऑलरेडी लाइसेंस ले चुका है तो। ओके, ओके राजेश सर,